So welcome students. In this new session, we are just going to start the first topic, that is the basic concept flow chart of the motion. So changes in the position of an object in respect to the fixed position with time, that is called motion. So motion क्या है? Changes in the position. What is going to be changed? Position is going to be change of any object. Suppose in my hand, if you are going to see that if you are having something like whenever we are talking about any mobile, suppose you are mobile, you are having the mobile, and that mobile you have taken, right? So what happened after some time, you will see that when you are changing the place, suppose you are having the mobile and mobile you are just going to move into the other places, or either you are having a ball and you are just going to throw the ball from here, it is moving. So ball is moving. So changes the position of an object with respect to the fixed position with time. So that is called motion. What we called? It's called motion. So one important thing, so if I talk about that, what is the rate of the motion, means the motion is a speed up or the fast motion or slow motion. तो वो मोशन है कैसा, फास्ट है या स्लो है. So measurement of the rate of the motion, that is also come into this. Let's I talk about the motion along the straight line. So straight line you have seen, you are riding your cycle, or either with the rope or thread you are just moving the stone. So that motion along with the circular path, when moving is an circular path with uniform speed, it is said to be the uniform circular motion. So in the circular motion, what happened that the direction is continuously changing. जो direction है, that is constantly, it is just continuously changing. So we are just talking about motion along with the straight line. So when moving into the circular path, suppose आपने एक thread लिया और उस thread में stone को बांध दिया, suppose, and you are just moving that thread. So what will happen? It is in the circular motion. And when the moving in the circular path with uniform speed, it is said to be the uniform circular motion. So direction continuous, it is going to be changed. So V is equal to 2 pi r or t. Okay. So you write here. So this is the flow chart of this motion. If I talk about the uniform motion, so what is the uniform motion? Equal distance in equal interval of time. What is that? Equal distance in equal interval of time. That motion is called uniform motion, right? Suppose you are having the car. Car everybody is having. If you are having the car, so 2 kilometers is going to be travel in the 2 minutes and 2 kilometers in the next 2 minutes. So what happened there? Uniform motion. It is the uniform motion. And what happened that next thing, next situation, that situation is very, very simple. The object cover unequal distance in equal interval of time. You are just driving your car and you have reached into the street where is having a too much crowd. आपने अपने कार को लेके एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां पे बहुत सारी भीड़ है. तो क्या आप एक ही स्पीड से उस कार को चलाओगे? बिल्कुल नहीं. Then what you will do, the objects cover unequal distance in equal interval of time. So that is called non-uniform motion. Okay? That is called non-uniform motion. यहाँ पर हम बात करेंगे. Anything you want to speak, please you speak. Anything you want. यहाँ पे यदि हम देखें तो अगला टॉपिक आता है हमारा स्पीड का. स्पीड आप सभी को पता है कि whenever we are just driving our car, the speed is sometimes slow or the speed is sometimes very fast.
So distance traveled by the objects in the unit time, that is called scalar quantity. What we called scalar quantity. Usually what happens that objects are in non-uniform motion. Therefore, what we do? We are calculating the average speed. तो बात आती है कि what is the formula of the average speed? So in the physics, that is the one part, we have to write all the formula of the chapter in the one place. उस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले हैं उस फॉर्मूले को हमें एक जगह पे लिख लेना चाहिए. तो चलिए लिख लेते हैं जल्दी से. एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन. अब कोई कार कभी बहुत ज्यादा स्पीड में चली, कभी थोड़ा कम चली, कभी थोड़ा ज्यादा चली, तो वो सबको एक साथ लिख के जितना टाइम उसने लिया उससे यदि हमने डिवाइड कर दिया तो हमारी स्पीड पता चल जाती है. एवरेज स्पीड कितनी होगी उस ट्रेन की, उस बस की, उस कार की. ठीक है. अब बात करेंगे कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द स्पीड. तो यहां पर आता है आपका मीटर पर सेकेंड इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड. तो कोई भी पूछेगा बहुत आसानी से आप बता सकते हैं. अब बात करेंगे हम लोग एक और कॉन्सेप्ट की जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी. व्हाट वी कॉल वेलोसिटी. स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अगर कोई ऑब्जेक्ट है, आप कोई चीज साइकिल चला रहे हो, तो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग, फिर एक मोड़ आया, एक मोड़ आया, तो वो मोड़ कौन सा आया? तो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन द डेफिनेट डायरेक्शन. तो कौन सा मोड़ आया जल्दी बताइए. उस मोड़ को हमने क्या बोला? डायरेक्शन बोला. आपने इसको क्या बोल दिया? जब आपकी स्पीड के साथ डायरेक्शन ऐड हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम वेलोसिटी बोलते हैं. ठीक है, वेलोसिटी. कैन बी द यूनिफॉर्म और द वेरिएबल. व्हेन द स्पीड इज वेरिएबल उसको बोलते हैं हम लोग एवरेज वेलोसिटी. अभी आपने देखा जब स्पीड इज वेरिएबल तो स्पीड में चेंजेस हुए, हमने एवरेज स्पीड निकाला. वैसे वेलोसिटी में चेंज होगा तो हमारा क्या होगा? दैट इज एवरेज स्पीड हम निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी हम निकालेंगे. और इस तरीके से हम देखते हैं कि ऐसा यूनिट वेलोसिटी का भी क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है. और स्पीड का भी यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है. स्पीड की बात करें तो स्पीड हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट हमेशा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता है और डिस्टेंस जो होता है वो ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिट टाइम. तो हमारा जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेलोसिटी है वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी. ये बात समझ में आ गई? चलिए, वेलोसिटी के बाद हम लोग आगे चलते हैं और आगे हमारा एक और टॉपिक आता है, दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन. तो एक्सीलरेशन मतलब क्या है? एक्सीलरेशन मतलब हमारा रेट ऑफ चेंजेस है. जो वेलोसिटी में चेंज हो रही है, रेट ऑफ चेंजेस हो रही है विद द टाइम, दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी. तो यहाँ का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है आपका? A इक्वल टू V माइनस यू बाई टी. अब V क्या है, U क्या है और T क्या है, हम लोग आगे की चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे. एक्सीलरेशन की बात करें तो उसका भी यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है. एक्सीलरेशन में दो टाइप के एक्सीलरेशन आते हैं. कौन कौन से आते हैं? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और दूसरा क्या है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. दूसरा क्या है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. अब एक चीज यहाँ पे समझने वाली बात है कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या है, बताइए. यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है हमारा कि वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज और डिक्रीज. कब इंक्रीज और डिक्रीज होता है? कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इंक्रीज और डिक्रीज बाय इक्वल अमाउंट इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. मतलब इक्वल अमाउंट में चेंज होगा और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज होगा. ऐसे एक्सीलरेशन को हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहते हैं.
The velocity of an object increases or decreases by the equal amount in the equal interval of time. नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? तो वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस कब, कैसे? अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये था आपका एक्सेलरेशन और आप इसको समझ गए होंगे। इसके बाद आता है एक बहुत अच्छी चीज जिसको आप जानते भी होंगे। आप सबने एक चीज पढ़ा होगा, ग्राफ। अब बता सकते हैं कि व्हाट इज ग्राफ? व्हाट इज ग्राफ? किसी भी चीज को जब हम पिक्टोरियल representation is known as graph. पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन द टू क्वांटिटीज ऑन द टू एक्सेस, दैट इज कॉल्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। चलिए आगे देखते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ का जो पार्ट है वह डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अभी हम लोग इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, तो अभी थोड़ा ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता क्या है। तो हम टाइम जो लेंगे वो किस एक्सिस पे लेंगे? टाइम हम लोग एक्स एक्सिस पे लेंगे और डिस्टेंस हम लोग किस पे लेंगे? वाई एक्सिस पे लेंगे। ठीक है। स्पीड ऑफ द बॉडी क्या होगा? स्लोप ऑफ द ग्राफ होगा। अब बात करते हैं हम लोग, एक छोटा सा डायग्राम हम लोग बनाते हैं तो हम लोग और अच्छे से समझ जाएंगे। अब आपके सामने ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है बताइए? वाई एक्सिस। ठीक है। और ये जो स्लोप है ये हमारा ये आ गया। ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या लेंगे? टाइम। और यहाँ पे क्या लेंगे? डिस्टेंस। ठीक है। डिस्टेंस, टाइम और डिस्टेंस हो गया। और स्पीड किस पे ले लेंगे? इस पे ले लेंगे। ठीक है। ये क्या हो गया? स्पीड हो गया। ओके। तो टाइम इधर हो गया, डिस्टेंस इधर हो गया। चलिए डिस्टेंस हटा देते हैं, डिस्टेंस को दूसरे कलर में लेते हैं। ये क्या है? डिस्टेंस। ये बात समझ में आ गई? डिस्टेंस इधर, टाइम उधर, स्पीड उधर। तो ये जो हमारा है, ये हमारा क्या है? ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है। ये हमारा टाइम आ जाएगा और ये हमारा डिस्टेंस है, वाई एक्सिस पे आ जाएगा। और स्लोप पे क्या आ जाएगा? स्पीड ऑफ द बॉडी आ जाएगी। स्पीड ऑफ द बॉडी आ जाएगी। ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। राइट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें एक बहुत अच्छी बात हम लोग जो मान रहे हैं, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है कि टाइम इज टेकन ऑन द एक्स एक्सिस एंड द वेलोसिटी इज टेकन ऑन द वाई एक्सिस। यहाँ पर भी हम लोग एक डायग्राम लेके चलेंगे। फिर से हम लोग लेते हैं और यहाँ पर जस्ट अ सिंपल थॉट्स हम लोग लेके चलेंगे। जस्ट अ मिनट। कि अब से क्लास 10th का नाम हम लोग कुछ अलग रखें, क्लास 9th का नाम कुछ अलग रखें। जैसे कुछ साइंटिस्ट के नाम पे आइंस्टीन, या फिर कुछ ऐसे अलग नाम, कोई स्पेस का नाम,
कुछ ऐसा आप लोग सजेस्ट करना, तो हमारे एक दिमाग में आ रहा है कि कुछ अलग नाम, जैसे क्लास 8 के बच्चे हैं तो उनका बैच का नाम ही कुछ अलग हो, तो कुछ ऐसा नाम जो पॉजिटिव हो, वेब्स पॉजिटिव दे, ये आप लोग सजेस्ट मुझे कर सकते हैं। ठीक है, अभी जल्दीबाजी नहीं है, आप लोग सोचिएगा कि बिकॉज आई वांट टू गिव, थोड़ा सा हट के नाम होना चाहिए, रेगुलर बैच रेगुलर बैच रेगुलर बैच, ऐसा कुछ नहीं, पढ़ने वढ़ने से थोड़ा सा हट के नाम होना चाहिए, so that it will give the positive waves to each and every students and the mindset also come, जैसे गैलीलियो है या सुपर आइंस्टीन है या समथिंग लाइक कॉस्मिक रेज है या कुछ ऐसा हेवन है, हेवन बैच, ओके, पैराडाइज बैच, ओके। So these batches are basically we are going to think in this year so that it gives the some positive waves। कुछ हमें ऐसा नाम रखना होगा, तो आप सजेस्ट करिएगा क्लास 6 के लिए क्या नाम रखें, क्लास 7 के लिए क्या नाम रखें, क्लास 8 के लिए क्या नाम रखें, और क्लास 9th के लिए क्या नाम रखें, और क्लास 10th के लिए क्या नाम रखें। सो हेवन, हेवन या एक नाम आ रहा है मेरे सामने, हेवन, हेवन का नाम बहुत अच्छा, ये क्लास बैच, बैच किस बैच के लिए है, ये बहुत ही अच्छा, प्ले बैच 9th के लिए हेवन रख देते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, हम लोग हेवन बैच रखते हैं, और पैराडाइज बैच हम लोग क्लास 8 के लिए रखते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। तो कुछ ऐसा बैच का नाम होना चाहिए जिसको सुनने के बाद हमें लगे कि हाँ चलो हम लोग कुछ हेवन में जा रहे हैं, कुछ पैराडाइज में जा रहे हैं। तो ग्लोबस एकेडमी हमेशा एक कोशिश की है कि वी हैव टू बी स्ट्रेस फ्री एंड वी हैव टू focus on that quality of education and where we have to understand and whatever the problem you are having that we will try to resolve। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको आती हैं या पढ़ाई में आती हैं जिसको आप बहुत बहुत बर्डन बना लेते हैं, आप सोचते अरे पढ़ाई तो बहुत ज्यादा ही टफ है, कैसे होगा, मुझे तो याद ही नहीं हो रहा है, बिल्कुल आप सोचना छोड़ दीजिए, क्योंकि हम आपके साथ हैं। ग्लोबस एकेडमी हमेशा ये चाहती है कि बच्चे खेलते खेलते पढ़ें, फन के साथ पढ़ें, कुछ एक्टिविटी करते पढ़ें, क्योंकि आपके ब्रेन में बहुत ही पावर है, हम लोग उस पावर को ऐड करेंगे। आपने देखा होगा एक छोटा सा अभियान हमारे प्रधानमंत्री ने चलाया था और उसमें बच्चों ने कितना बड़ा अपनी भूमिका निभाई थी। कल के परीक्षा की चर्चा में भी उन्होंने इसका जिक्र किया और उसकी पूरी क्रेडिट बच्चों को दिया। आज कोई भी संस्था हो, कोई भी चीज हो, ऑनलाइन एजुकेशन हो या कोई भी चीज हो, वहां पर बच्चों का एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि बच्चे एक बहुत बड़ी पावर होते हैं, बहुत बड़ा पावर होते हैं। हमारा इतिहास भी हमेशा ये कहा है, हमारे ग्रंथ भी हमेशा से कहे हैं। तो हमारे बच्चों की पोटेंशियल को हम लोग लेते हैं और इस साल कोशिश करेंगे कि आप अपनी बुक से क्वेश्चन टाइप करें और क्वेश्चन कई फॉर्मेट में टाइप करें। चलिए हम बताते हैं आपको कि फॉर्मेट क्या होगा। फॉर्मेट आप नोट कर लें, मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको लिख रहा हूं। पहला चीज है कि आप जो है कुछ क्वेश्चन टाइप करें डेली। तो उसमें आपका पहला टाइप होगा दैट इज एमसीक्यू में आपका होगा चूज द करेक्ट। सेकेंड पॉइंट होगा आपका वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ओके। और एक होगा आपका शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चन, ठीक है। फिर होगा आपका लॉन्ग क्वेश्चन, फिर होगा आपका हॉट्स क्वेश्चन, फिर आपका होगा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस आप टाइप कर सकते हैं और हमको भेज सकते हैं ग्लोबस एकेडमी 1@gmail.com। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये आपका एक प्लेटफॉर्म है जहां पे कि आप अपने आप को बता सकते हैं, भेज सकते हैं। तो ये आपको भेजना है, मैं आपके सामने ये लिंक शेयर कर दिया, ठीक है। अब बात आ रही है कि ग्लोबस एकेडमी ऑनलाइन, इस पर आपको ये सारे क्वेश्चन भेजने हैं। आइए अब वापस फिर से अपनी
कोर्स पे चलते हैं। यहाँ पे आपने क्या देखा, वेलकम टू द टाइम ग्राफ, जिसमें हम लोग टाइम एक्स एक्सिस पे जैसा हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में लिया था, और वेलोसिटी जहाँ की हम डिस्टेंस की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग लेके चलते हैं। और ये आपका जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो कुछ इस तरीके से है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये आपका बन रहा है दैट इज स्लोप। अब ये क्या है, इसमें आपका ये है एक्स एक्सिस, ठीक है, वेरी गुड, एक्स एक्सिस। ये है आपका वाई एक्सिस, वेरी गुड। और ये है वाई एक्सिस पे हम क्या रखने वाले हैं, वाई एक्सिस पे हम रखने वाले हैं वेलोसिटी को, और एक्स एक्सिस पे हम क्या रखने वाले हैं, एक्स एक्सिस पे रखने वाले हैं टाइम। ओके, टाइम, वेरी गुड, वेरी गुड। So in this you see we are having the such a great things like x or y we are taking. So acceleration of the body, अब acceleration of the body को कहाँ रखेंगे, slope of the graph, slope of the graph, नहीं ये नहीं, ये वाला पोर्स, ये क्या है आपका स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो यहां पर क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है, एक्सेलरेशन आएगा, करेक्ट। ये है आपका एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, दैट इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ। So distance and displacement, area under the curve, area under the curve। तो ये हो गया आपका बिल्कुल क्लियर। आगे बढ़ते हैं, डिस्टेंस एंड अपॉन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द एरिया अंडर द कर्व। फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन स्लोप इज द स्ट्रेट लाइन, फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन स्लोप इन द कर्व लाइन। अब थोड़ा सा एक और हम आपके सामने डायग्राम बनाते हैं। अगर हम इसको स्ट्रेट लेके चल रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या है, और यदि हम कुछ इस तरह का यदि फिगर लेके चल रहे हैं तो मुझे बताइए कि कौन सा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और कौन सा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है, और ऊपर वाला, वेरी गुड, ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा बता रहे हैं। अब आता है इक्वेशन ऑफ द मोशन, मोशन के इक्वेशन, ये भी आप बहुत अच्छे से लिख लीजिए। अब ये फर्स्ट है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अभी हम लोगों ने एक चीज देखा कि वेलोसिटी टाइम रिलेशन क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये आप लिख लीजिए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा है हमारा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप यहाँ पर एक बात आती है, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बात समझ में आ गया, वेलोसिटी टाइम रिलेशन और पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ये तीन इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली, और भी जानेंगे बहुत कुछ। तो ये सारी चीजें थी आपकी फर्स्ट लेक्चर में। अब यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, और वो क्वेश्चन आपके सामने